Good afternoon, friends. New video time to proceed further. Um, I have received 43 responses till now who have submitted the assignment. Again, congratulations, very nice work, sincere efforts you have put. Almost all the students, those who have sent the photos, those who have sent the notes, very good indeed. But I would like to mention name of few students who had done really well. So among boys, Deepak, then Rahul, Yaksh, Prem. Uh, among girls, Sejal, Khushbu, Krishna, Sapna, Trisha, uh, who have tried to make notes with some different formats, which is very appreciating. Then Arushi, Ritika, and Trisha, they have added diagrams. So good to see that you're trying, you're giving a thought that how could a notes, how notes could be made, how notes could be make more easy, attractive. But then there are some of the students whose notes I really like. Among them, Arvind, Nilesh, Ishan, then Dheeraj, Prem. Among girls, Ashvi, Khushi, Neha, and Sonal, of course. They have made notes which, the way I have expected, and the notes which I'm going to share with all of you is exact in the same format which these students have made in the last. So congratulations that you have given a thought that notes could be made in this format. कल के टास्क में था क्या एक्चुअली? सेंचुरीज, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ये 3 कैटेगरीज थी. सो कंपैरिजन मोड में नोट्स बनाए जा सकते थे. बेसिकली अगर क्वेश्चन पूछते तो वो कंपैरिजन या डिफरेंसेस का होता. तो अगेन आप टेबल में रख के उसको नोट्स बना सकते हो. ये सबसे आसान तरीका है और ऐसे ही ये लोगों ने नोट्स बनाए हैं. सो गुड. नाउ मूव ऑन टू our topic. Likewise, I have told you yesterday, today we will be discussing in detail about note making, significance of note making. I'm sure अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे या ऐसे पेरेंट्स होंगे जिनके मन में ये चल रहा होगा कि क्या ये इतना ज़रूरी है, क्या हम डायरेक्टली टॉपिक की बात नहीं कर सकते, पढ़ाने की बात नहीं कर सकते. तो उनके लिए एक एग्ज़ाम्पल है. क्रिकेट हम सबको पसंद है. सचिन तेंदुलकर का बर्थडे कल ही हो गया. विराट कोहली हमारा फेवरेट क्रिकेटर है. सो डू यू नो व्हाट दे डू बिफोर दे कम इनटू ग्राउंड फॉर मैच? हमारे क्लास में भी यक्ष या फिर नीलेश है जो क्रिकेट खेलते हैं. Do you know what they exactly do before they come to match? They do warm up. Warm up is like a practicing session where विराट कोहली स्ट्रेट ड्राइव की प्रैक्टिस शायद हो सकता है कि 50 बार करता है. कवर ड्राइव की प्रैक्टिस है, स्क्वायर कट की है. ठीक है. They also do the exercises. They also warm up their bodies and catching practice and different things. और उसके बाद ही वो मैच खेलने के लिए आते हैं एंड देन दे डिलीवर्ड देयर बेस्ट परफॉर्मेंस. सो वॉट एवर वी आर गोइंग, वॉट एवर वी आर डिस्कसिंग दीज डेज, नोट्स मेकिंग, एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम मोर टॉपिक्स, इज लाइक आर वार्म अप फॉर आवर 10th स्टैंडर्ड. सो इसका सिग्निफिकेंस काफ़ी है. आप ये स्किल्स अच्छे से सीखो, अच्छे से उस पर मास्टरी पाओ. I'm sure I can give you guarantee that 10th standard will be a very easy journey for you. So having said that, let me move to our topic, note making. So note making skills, तो जैसे मैंने बताया
कल की क्यों ज़रूरी है. So 3 very important point. First is effective revision, because we don't have much time. We have to revise our syllabus in one day before exam. So effective revision is required, and that could be achieved through only note making. Then it helps us to save our time note making. In minimum time you can revise the maximum syllabus. And third is effective retention. Retention मतलब याद रखना. If you have seen that many of you though try to learn through rote learning, कि जो मैं बार बार बोलते रहता हूँ कि आपको rote learning नहीं करनी है, आपको आपके भाषा में लिखना है, सोचना है. बट मेनी ऑफ यू रिलाई अपॉन rote learning, कि जैसे किताब में दिया है वैसे ही पढ़ो, वैसे ही याद रखो, वैसे ही मेमोराइज करो. तो ये rote learning जो है ये आपको मेमोराइज करने में और उसको वापस लिखने में बहुत काम नहीं करती. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिटेंट, डिफ़िकल्ट टू मेमोराइज. आप अगर अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में कुछ अगर लिखते हो, इट इज़ डिफ़िकल्ट, इट इज़ ईजी टू रिप्रोड्यूस. आप उसको बहुत अच्छे से लिख पाते हो. इट इज़ वेरी ईजी. सो द थर्ड most important reason for which we should make notes is effective retention. Then what are notes? Notes क्या होते हैं? 2 चीज़ें हमें ध्यान रखने की. पहले नोट्स क्या नहीं होते ये समझना है. जो दिया गया हुआ टेक्स्ट है, कंटेंट है, उसको वैसे के वैसे लिखना या याद रखना ये नोट्स नहीं होते. या उसको किसी भी डायग्राम में डाल देना, किसी भी पैटर्न में डाल देना, कुछ लाइंस बनाना, बॉक्सेस बनाना, ये भी नोट्स नहीं होते. सो व्हाट इज़ नोट्स? सो if you see the definition of notes, it is a brief record of point or ideas written down as an aid to memory. मतलब क्या? Basically notes help us to memorize and reproduce text in easy manner. टेक्स्ट जो भी हम पढ़ते हैं ये आपको मेमोराइज करने में और वापस उसको लिखने में वो आपको ईजी बना देते हैं. बेसिकली नोट्स इज अ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेक्स्ट विच हेल्प टू सेव योर टाइम एंड एफर्ट्स. जो आपके सामने कंटेंट है, जैसे मैंने आपको 3 पेजेस भेजे थे, नोट्स में क्या होता है कि आप उसको रीऑर्गेनाइज करते हो. आप पॉइंट फॉर्म में लिखते हो, आप टेबल में लिखते हो. तो उससे क्या होता है कि आपका एक तो टाइम बचता है रिवाइज करने के टाइम, और आपके एफर्ट्स बच जाते हैं. सो ये नोट्स है, हमें समझना है कि ये हमारे खुद को हेल्प करते हैं टाइम और अपने एफर्ट्स सेव करने के लिए, एज वेल एज इट हेल्प अस टू reproduce the content very easily. Now how to make a good notes? This is important. So there are steps I have written over here. First, understand the content or text given to you very carefully. आपको जो टेक्स्ट दिया है, जो पेजेस दिए हैं, जो टॉपिक आपके सामने है, आप उसको पहले ठीक से समझो. ट्राई टू आइडेंटिफाई पैटर्न और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. उसके अंदर क्या क्या है, जैसे हमने परसों क्रॉप्स के अंदर देखा था कि कॉमन चीज़ें थी कि जोग्राफिकल एरिया है, प्रोडक्शन है, क्लाइमेट है. ठीक है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. सेकेंड, नाउ थिंक व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कुड बी आस्क ऑन गिवन टेक्स्ट. इस पे कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. लॉन्ग नोट पूछी जा सकती है, शॉर्ट नोट पूछी जा सकती है, कंपैरिजन या डिफरेंस पूछा जा सकता है, 1 सेंटेंस पूछा जा सकता है, डायग्राम या मैप पूछा जा सकता है. उसके आधार पे आप सोच सकते हो कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं. थर्ड, नाउ थिंक दैट हाउ आर यू गोइंग टू ऑर्गेनाइज दिस कॉन्टेंट इफेक्टिवली. बेसिकली आप अभी नोट्स कैसे बनाने वाले हो, उसके भी 2 स्टेजेस है. फर्स्ट, आप टेक्स्ट बुक पे नोट्स बनाने वाले हो या आप नोटबुक में बनाने वाले हो. सेकंड, विच फॉर्मेट. अलग अलग फॉर्मेट में नोट्स बनाए जा सकते हैं. पॉइंट फॉर्मेट्स में है, टेबल फॉर्मेट्स में है. बहुत लोगों ने अभी नोट्स में फैमिली ट्रीज जिसको बोलते हैं वो फॉर्मेट में नोट्स ड्रॉ किए थे. ऐसे अलग अलग फॉर्मेट्स में नोट्स बनाए जा सकते हैं. बट वी नीड टू अंडरस्टैंड what is mean by good notes. So good notes are those which are clear and easy to understand, require minimum space and time to revise.
जो इजी है, अंडरस्टैंडिंग में आसान है और जो कम से कम जगह पे और कम से कम टाइम में रिवाइज किए जा सकते हैं, ऐसे टेक्स्ट को आप अच्छे नोट्स बोल सकते हो। हैविंग सेड दैट, टेक्स्ट बुक पे नोट्स कैसे करते हैं इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। सो देर आर 3 कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट इज कीवर्ड। जब भी हम कोई टेक्स्ट बुक और पैराग्राफ पढ़ते हैं, यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट वर्ड, कीवर्ड। जैसे हम घर का ताला की से खोलते हैं और डोर खुल जाता है, यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट वर्ड विच हेल्प यू टू मेमोराइज होल पैराग्राफ वेरी इफेक्टिवली। सो वो हो गया आपका कीवर्ड। की लाइन, हर एक पैराग्राफ में ज़रूरी नहीं कि कीवर्ड होगा, कुछ हो सकता है पैराग्राफ में कॉन्सेप्ट नहीं होंगे, कीवर्ड नहीं होंगे, जहाँ पे आपको की लाइंस को अंडरलाइन करना है। और साइड नोट्स, साइड नोट्स क्या है कि आपको वो पैराग्राफ की समरी जो है आपको 2 या 3 शब्द में साइड में टेक्स्ट बुक के जो मार्जिन दिया हुआ है वहाँ पे आपको लिखनी होती है। सो उससे क्या होता है कि आपको काफ़ी आसान हो जाता है वो टेक्स्ट बुक को रिप्रोड्यूस करना या उसके नोट्स बनाना। अभी आज का टास्क। सो 9th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में आपको चैप्टर नंबर 12 है इंडियन डेमोक्रेसी, उसके नोट्स आपको बनाने हैं, पर वो बनाने हैं आपके टेक्स्ट बुक पे। मैं आपके साथ पीपीटी भी शेयर कर रहा हूँ विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट नोट मेकिंग एंड अबाउट योर होमवर्क।